Dear brother and sister, in the victorious name of Jesus Christ. प्यारे बहन भाइयों, यीशु मसीह के फतेहमंद नाम में आप सबको आज सुबह का सलाम। I'm delighted to be here again. मैं यहाँ आकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ। First of all, we thanks to God who saves us in this week and provide a blessed Sunday. सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने हमें एक बाबरकत एतवार मुहैया किया और सारा हफ्ता जो है हमें संभाले रखा। Let's have a big hand for our Savior Jesus Christ. आए हम अपने निजात दहिंदा यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां बजाएं। Today my topic is मेरा आज का अन्वान है We never saw anything like this before. हमने ऐसा कभी नहीं देखा। Let's open a scripture with me. आए मेरे साथ हवाला खोलें। The Gospel of Mark, कलामे मुकद्दस में से मुकद्दस मरकस रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान chapter number 2, verse 1 to 12. उसका दूसरा बाब उसकी 1 ता 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। Have you opened your Bible? क्या आपने अपनी बाइबल मुकद्दस खोल ली है? मरकस की अंजील उसका दूसरा बाब उसकी 1 ता 12 आयत तक हम पढ़ेंगे। It has written in it, इसमें कुछ यूं मरकूम है। And again he entered Capernaum after some days, and it was heard that he was in the house. कई दिन बाद जब वो कुफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है। Immediately many gathered together, so that there was no longer room to receive them, not even near the door. फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजे के पास भी जगह ना रही। And he preached the word to them. और वो उनको कलाम सुना रहा था। Then they came to him, bringing a paralytic who was carried by 4 men. और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवाकर उसके पास लाए। And when they could not come near him because of the crowd, they uncovered the roof where he was. मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया। So when they had broken through, they let down the bed on which the paralytic was lying. और उसे उधेड़कर उस चारपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। When Jesus saw their faith, he said to the paralytic, Son, your sins are forgiven you. यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। And some of the scribes were sitting there and reasoning in their hearts. मगर बाज फकीह जो बैठे थे वो अपने दिलों में सोचने लगे कि Why this man speak blasphemies like this? Who can forgive sin but God alone? ये क्यों ऐसा कहता है, कुफर भगता है, खुदा के सिवा गुनाह कौन माफ कर सकता है? But immediately when Jesus perceived in his spirit that they reasoned thus within themselves, he said to them, और फिर यीशु ने अपनी रूह से मालूम करके कि वो अपने दिलों में यूं सोचते हैं, उनसे कहा, Why do you reason about these things in your hearts? तुम क्यों अपने दिलों में ये बातें सोचते हो? Which is easier to say to the paralytic, your sins are forgiven you, or to say, arise, take up your bed and walk? आसान क्या है मफलूज से ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठाकर चल फिर? But that you may know that the Son of Man power on earth to forgive sins, he said to the paralytic. लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है, उसने उस मफलूज से कहा, I say to you, arise, take up your bed and go to your house. मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी चारपाई उठाकर अपने घर चला जा। Immediately he arose, took up the bed and went out in the presence of them all. और वो उठा और फिर चारपाई उठाकर उन सब के सामने बाहर चले गया। So that
All were amazed and glorified God, saying, "We never saw anything like this." चुनाचा वो सब हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करके कहने लगे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। Here we saw a man who had firm faith on God. यहाँ हम एक आदमी का ईमान देखते हैं कि जिसका खुदा पर मजबूत ईमान था। When they saw the crowd gathered at the door and no way entered in the house, जब उसने देखा कि दरवाजे पर बहुत ज्यादा भीड़ है और अंदर जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, then the family of paralytic took up his bed and uncovered the roof so that they can go to Jesus Christ. इसलिए मफलूज के खानदान ने यह फैसला किया कि वो उसकी चारपाई को उठाए और उन्होंने छत को जो है वो चीरा और छत को जो है वो अनकवर किया और यीशु मसीह के पास उसे ले गए। Jesus was also impressed by their faith यीशु मसीह उनके ईमान से बहुत ज्यादा मुतासिर हुए and said to paralytic, "Your sins are forgiven you." और मफलूज से कहा, तेरे गुनाह माफ हुए। And some scribes were sitting there. और कुछ फकीह वहां बैठे हुए थे। They think, who gave the authority to Jesus that he forgive people's sins? कि यीशु मसीह को किसने ये इख्तियार दिया कि वो लोगों के गुनाह माफ करे? God is the only one who can forgive sins. यीशु मसीह खुदा वाहिद है जो लोगों के गुनाहों को माफ कर सकता है। It is written in the word of God. और कलाम मुकद्दस में लिखा है Jesus knowing their thoughts कि यीशु ने उनके दिल के ख्यालात मालूम कर लिए। From this sentence we came to know that इस जुमले से हमें ये पता चलता है कि Jesus Christ knows everything. यीशु मसीह सब कुछ जानते हैं। God has all the authority and knows everything. खुदा हाकिम कुल है और वो सब कुछ जानता है। He gave that authority to Jesus Christ. और खुदा ने वही इख्तियार यीशु मसीह को भी दिया है। He also knows everything, even the thoughts of your hearts. वो भी सब कुछ जानते हैं, यहाँ तक कि हमारे दिल के ख्याल भी। हालेलुया, हालेलुया। That's why the man of God, David said, इसलिए खुदा का बंदा दाऊद कहता है in Psalm 139, ज़बूर 139, "Oh Lord, you have searched me. ऐ खुदावन तूने मुझे जांच लिया। You know me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thoughts afar off." तू मेरा उठना और बैठना जानता है, तू मेरे ख्याल दूर ही से मालूम कर लेता है। Jesus Christ asked them, which is easy to say? यीशु मसीह ने उनसे कहा कि आसान क्या है That your sins are forgiven you, कि तेरे गुनाह माफ हुए, or arise up and take up your bed and walk. और यहाँ अपनी चारपाई उठा और चल फिर। Jesus Christ not only have authority to forgive sins, यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे गुनाह माफ करने का इख्तियार है, moreover, evil spirits, diseases, atmosphere, and deaths, बल्कि यीशु मसीह को बदरूहों पर, बीमारियों पर, माहौल पर और मुर्दों पर भी इख्तियार है। हालेलुया, हालेलुया। That's why the people said, "We never saw anything like this." इसलिए लोगों ने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। We can see in the book of Genesis, हम पैदाइश की किताब में देखते हैं God provided son to Abraham in the age of 100. खुदा ने इब्राहिम को 100 वर्ष की उम्र में बेटा अता किया। To be born to a man in the age of 100 years, it was completely impossible in the medical sciences. एक आदमी से 100 वर्ष की उम्र में औलाद पैदा होना मेडिकल साइंस के मुताबिक ये बिल्कुल नामुमकिन है। But God can do everything. मगर खुदा सब कुछ कर सकता है। God can do those things which is very difficult in the eyes of human beings. खुदा वो भी कर सकता है जो इंसान की नजर में बहुत ज्यादा मुश्किल है। Hallelujah. हालेलुया, जोर से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। We can see our God changed the life of Israel. हम देखते हैं कि हमारे खुदा ने इस्राएल की जिंदगी को बदल दिया। When they were standing at the river
जब वो समंदर के किनारे खड़े थे, God divided that river for Israel. खुदा ने इस्राएल के लिए समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम And the किया। people said, we never saw anything like this. और लोगों ने कहा कि हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। In the era of Elijah, और हम देखते हैं एलिया नबी के दौर में God commanded raven to feed it, and it was so. और खुदा ने कव्वे को ये हुक्म किया कि वो मेरे बंदे की परवरिश करे, And it was so. और ऐसा ही हुआ। God made Joseph king from a slave, and it was so. और खुदा ने यूसुफ को असीर से वजीर बना दिया। And people said, we never saw anything like this. और लोग कहते हैं हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। God made King David from a shepherd. खुदा ने, हम देखते हैं कि दाऊद को एक चरवाहे से बादशाह बना दिया। And people said, we never saw anything like this. और लोग कहते हैं हमने ऐसा कभी नहीं देखा, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। If you want that Jesus do impossible things in your life, अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपकी जिंदगी में नामुमकिन चीजों को करे, then give your life to Jesus Christ. तो अपनी जिंदगी यीशु मसीह को दे दें। If you will do so, अगर आप ऐसा करेंगे, then people will say, और फिर लोग कहेंगे we never saw anything like this. और हमने ऐसा कभी नहीं देखा था। God bless you. खुदावंद आपको बरकत दे। Amen. आमीन। Hallelujah.